Good morning children. In previous video we have discussed about the coal, and in this video we will continue the next topic, that is petroleum. Petroleum is also a fossil fuel, and we have seen the scooters, cars, bikes are run by the fuel petrol, and trucks, tractor run on diesel. So petrol and diesel are obtained from petroleum. Okay, so we continue the topic petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. पेट्रोल इनमें यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, मोटरसाइकिल में यानी कि बाइक्स वगैरह में, स्कूटर में, कार में, क्योंकि इनकी जो इंजन होता है दैट इज़ लाइट. ओके, एंड हैवी मोटर व्हीकल्स, जिसकी हैवी मोटर है उसको रन क्या है, जैसे लाइक ट्रक है, ट्रैक्टर है, वो रन किससे करते हैं? डीजल से. सो पेट्रोल एंड डीजल एंड पेट्रोल आर प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. ये हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से. दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स. ओके, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, एंड पेट्रोलियम contain most of the useful products. So it has a mixture of different substances, and when we get the petroleum we refine it and get the different useful products. Okay, so now see how petroleum is formed. Petroleum was formed from organism living in the sea. As you know that coal is formed from the fossil fuel, from the dead remains of the vegetation. Same as it is, petroleum are also formed from the dead organism, living organism in the sea. When they die, okay, it means organism which live in the sea, they died and their body settle at the bottom of the सी. जब वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सी में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, वो डेड होने के बाद वहीं नीचे बॉटम में, सी के बॉटम में डिपॉजिट होते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं. एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और धीरे धीरे उसके ऊपर सैंड और क्ले कवर करना शुरू कर देती है. इट मीन्स धीरे धीरे वो और नीचे चले जाते हैं. ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. बहुत सालों में, millions of years, absence of air and high temperature, क्योंकि एयर की कमी होती है, हाई टेम्परेचर होता है इन द अर्थ क्रस्ट एंड हाई प्रेशर भी होता है. तो धीरे धीरे करके ये डेड ऑर्गेनिज्म जो कि सी में थे और धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गए, अंडर द बरीड हो गए हैं, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, नाउ सी इन द पिक्चर. हेयर इट इज अ petroleum and natural gas deposit. Have you seen? Here this is the reservoir of rocks, reservoir rock. Here the water is found, okay, in previous rock. Here is the oil layer and here is the gas. Okay, this is the in previous rocks, and these are the wells जहाँ से डग करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है. उस जगह को क्या बोलते हैं? वेल. ओके, ड्रिल करके अर्थ नीचे बिल्कुल ज़मीन से, ओके, समुद्र के नीचे जो ज़मीन है उसमें से वेल बना के और ड्रिल करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी दैट ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर. वाटर के लेवल से ऑयल और गैस ऊपर है. वाई? कैन यू गिव द आंसर? Yes, because we have already discussed that oil and gas, oil do not mix up into the water. Oil and gas are lighter than the water, that's why it is found above the water. ऑयल हमेशा आपने देखा है कि पानी में डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होती है, वो स्प्रेड हो जाती है, सरफेस पे रहती है. तो ये इसीलिए ऊपर है, बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर. गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट. Here the conclusion is given. Look at the figure. I have already seen you.
It shows the deposit of petroleum natural gas, and you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water से above है. Reason मैंने आपको बता दिया, because oil and gas are lighter than water and do not mix with it, that's why. Okay, now some information about the petroleum well. पेट्रोलियम वेल जहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है. ओके, सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में यूएसए में 1859 में सबसे पहले ड्रिल किया गया था ऑयल को. ओके, आफ्टर देन 8 years later in 1867 oil was स्ट्रक एट माकूम इन आसाम. इंडिया में जो आसाम है, आसाम में माकूम जगह पर उसके बाद ऑयल वेल को ड्रिल किया गया. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम. इंडिया में सबसे पहले कहाँ मिला? आसाम में, माकूम जगह पर. और ऑयल वेल और भी जगह मिलते हैं, लाइक इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. यहाँ पर क्या मिलते हैं? ऑयल वेल. ओके, ऑयल वेल मीन्स पेट्रोलियम ऑयल वेल. आफ्टर देन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Refining means, I already told you that petroleum has a number of useful products. Okay, so we can separate them from the petroleum and we get different product. So this process is known as refining. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिफाइनिंग. क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कोई दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर उनको लेकर के एक नई, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है. ठीक है, ये सारे किसके प्रोडक्ट हैं? पेट्रोलियम के हैं. तो इनको यूज़ किया जाता है और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिससे इसमें से इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ द रिफाइनिंग. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. जब पेट्रोलियम को, जिसे कहते हैं ना रॉ ऑयल, कच्चा तेल, तो वो उसका जो कलर है वो कैसा है? डार्क ऑयली लिक्विड है. ओके, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, डार्क कलर का होगा, ब्राउन और ब्लैक कलर. एंड अनप्लीजेंट ऑडर. इसकी स्मेल जो है अनप्लीजेंट है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स सच एज पेट्रोलियम गैस. इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स. ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ, टर्न द पेज. The process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. तो इस प्रोसेस को, जिसमें पेट्रोलियम में से डिफरेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूट जो इसमें मिक्स हो रखे हैं उनके फ्रैक्शंस को अलग अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. जहाँ पे इसको रिफाइन किया जाता है, जहाँ पे सेपरेट किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो हेयर द पिक्चर ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी. ओके, सबसे पहले यहाँ पेट्रोलियम ले जाया जाता है और यहाँ से प्रोसेसिंग के थ्रू डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूट इसके अंदर मिक्स हो रखे हैं उनको अलग किया जाता है. इस रिफाइनरी के अंदर एक, इट इज़ अ कॉलम, ओके, सेपरेटिंग कॉलम, और उनको और पेट्रोलियम को हीट किया जाता है. और हर एक कॉन्स्टिट्यूट का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो वाटर वेपर की फॉर्म में, इट मीन्स गैसियस फॉर्म में, हर एक प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फिर उनको कंडेंस किया जाता है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर हमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट मिलते हैं और फिर हम उनको यूज़ कर लेते हैं. ओके, हियर चिल्ड्रन, आई एम शोइंग द fractional distillation column of the petroleum. In refineries there is a fractional distillation column. यहाँ कॉलम बने हुए हैं. ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहाँ पर बॉईल किया जाता है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. ओके, तो ये वेपर फॉर्म में मिलते हैं, फिर इनको कंडेंस कर लिया जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे पेट्रोलियम, चारकोल, डीजल, हाई क्वालिटी ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये देखो हर एक का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है और हर एक जगह पर जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है वहाँ से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है. तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सो ये कहाँ पर होता है? रिफाइनरीज में.
Now open the page number 62. We will do the exercise and the question number 4 and 5. Fill in the blanks and true false. See the first fill-ups. Fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. Okay, so you fill here coal, petroleum, natural gas. After the second sentence, process of separation of different constituents from petroleum is called what? रिफाइनरी. अभी बताया था ना आपको कि पेट्रोलियम से जो सेपरेट किए जाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूट, उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफाइनरी. आफ्टर देन लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है इस फ्यूल से, इसीलिए व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जाता है. आफ्टर देन ट्रू फॉल्स. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन laboratory. This is false. You know now fossil fuels made in the where? Earth crust. Okay, millions of years to take the formation of fossil fuels and not in the laboratory. So this sentence is false. After then B, CNG is more polluting fuel than petrol. पेट्रोल से ज़्यादा polluting fuel कौन सा है? CNG. This is false sentence. CNG is the least polluting fuel. So write here false. After then third sentence, coke is almost pure form of carbon. Right? It is the pure form of the carbon. So write here true. Coal tar is a mixture of various substances. Yes, I know. We already studied that coal tar also have various substances. So this sentence is true. After then last one is kerosene is not a fossil fuel. False. It is a petroleum product. So we get kerosene from the petroleum. So this sentence is false. Okay, so listen children, this is your work. Do question number 4 and 5 fill ups and true false in your notebook. Okay, thank you.